Hello everyone, welcome to my YouTube channel Homeopathy is Everywhere. So in the previous lecture we have started the unit Demography and Family Planning, and we have studied about the introduction of demography and demographic cycle. In the lecture we will start family planning and various methods of contraception. So today we will study its introductory part कि family planning क्या होती है and a gender classification of contraception. So let's start. Family planning definition. According to WHO, it is a way of thinking and living that is adopted voluntarily upon the basis of knowledge, attitude, and responsible decisions by individuals and couples to promote health and welfare of the family group and contributing effectively to the social development of the country. So WHO के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है फैमिली प्लानिंग की? ये एक वे है सोचने और रहने का जो कपल्स एडॉप्ट करते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग, नॉलेज की बेसिस पे, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस की बेसिस पे जिससे हेल्थ और वेलफेयर फैमिली ग्रुप का प्रमोट होता है. इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के कंट्रीब्यूशन में भी. तो इसे ही हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. सो मोटिव या एम क्या है फैमिली प्लानिंग का? फर्स्ट, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स. यस, फैमिली प्लानिंग जो नॉट नीडेड बर्थ्स हैं, जो अनवांटेड बर्थ्स हैं, उनको अवॉइड करने के लिए. सेकेंड, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ्स, ऑफ कोर्स कि जो नीडेड बर्थ्स हैं उनको ब्रिंग अबाउट करने के लिए. थर्ड, टू रेगुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसीज, मतलब दो प्रेगनेंसीज के बीच में इंटरवल को रेगुलेट करने के लिए जिससे मदर की हेल्थ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए. एंड लास्ट, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ फैमिली प्लानिंग. तो हमने देखा डेफिनेशन फैमिली प्लानिंग की एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट वी विल सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, also known as fertility regulating methods or pregnancy regulating methods. So contraceptive methods को हम fertility regulating methods भी कहते हैं या pregnancy regulating methods. कई बार इसके नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है. So definition: the methods of prevention used by the women to avoid unwanted pregnancies resulting from coitus. So contraceptive methods क्या होते हैं? ये prevention के method होते हैं used by the women जिससे unwanted pregnancies जो हैं वो avoid हो सके resulting from sexual intercourse. Next, classification. सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो बेसिकली दो मेन टाइप में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट, स्पेसिंग मेथड्स एंड सेकेंड, टर्मिनल मेथड्स. अब इन दोनों टाइप के भी कुछ सब टाइप्स हैं. स्पेसिंग मेथड्स फर्दर 5 टाइप्स में क्लासिफाइड है. फर्स्ट, बैरियर मेथड्स. सेकेंड, आईयूडीज दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. थर्ड, हार्मोनल मेथड्स. फोर्थ, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स एंड फिफ्थ, मिसलेनियस मेथड्स. बैरियर मेथड्स भी फर्दर डिवाइडेड है फिजिकल, केमिकल एंड कंबाइंड बैरियर मेथड्स में. बेसिक मेथड्स आर ऑफ 5 टाइप्स. सेकेंड, टर्मिनल मेथड्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट, मेल स्टेरिलाइजेशन also known as vasectomy, and second, female sterilization also known as tubectomy. बेसिक मेथड्स में फर्स्ट, बैरियर मेथड, इसको इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में 1 by 1 हम सारे मेथड्स देखेंगे. So let's start barrier methods. Barrier methods aim, these methods prevent live sperm meeting with ovum. So barrier methods का main aim क्या होता है? जो live sperm की meeting है वो ovum के साथ prevent करना. Types, they are mainly of 2 types, physical barrier methods and chemical barrier methods. So barrier methods जो हैं वो 2 में divided हैं, physical and chemical. पहले हम पढ़ते हैं physical barrier methods. So physical barrier methods, they are again divided into 3. First, condoms, second, diaphragm and third, vaginal sponge. को 1 by 1 देखते हैं. First, condoms. So the male and female both condoms are available. It is most widely used by males across the world as a barrier method. In India, derived from Nirod, a Sanskrit word meaning prevention. So जो condoms हैं वो most widely used method है जो males द्वारा use होता है across the world as a barrier method. और इंडिया में ये डिराइव्ड हुआ है निरोध वर्ड से जो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रिवेंशन.
अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो फर्स्ट, इजी टू यूज़। सेकंड, सेफ एंड इनएक्सपेंसिबल। लाइट एंड इजीली डिस्पोजेबल। फोर्थ, नो साइड इफेक्ट्स। फिफ्थ, प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसीज एज वेल एज एसटीडीज। बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स है, उसके एडवांटेजेस की एक तो इट इज़ ईजी टू यूज़, सेफ है एंड इनएक्सपेंसिव वेट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसीज एज वेल एज फ्रॉम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। डिसएडवांटेजेस में स्लिप ऑफ, टीयर ऑफ एंड इंटरफेयर विद सेक्शुअल सेंसेशन. So this is all about physical barrier method first type. Second, diaphragm. These are vaginal barriers also known as Dutch cap. So ये vaginal barriers हैं which are used by the females. Advantages: total absence of risk and medical contradictions. So ये method जो है इसमें कोई भी risk नहीं है और कोई भी medical contradictions इसमें नहीं है. Advantages क्या है इसके? Requires physician and some trained person for the procedure of use. तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमें किसी भी ट्रेन पर्सन या फिजिशियन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये सेल्फ नहीं है. सेकेंड, आफ्टर डिलीवरी कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस इज कंप्लीटेड. सो डिलीवरी के बाद हम इस मेथड को तभी यूज़ कर सकते हैं तब जब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस कंप्लीट हो जाए. जैसा कि हमने गायनिकोलॉजी में पढ़ा है इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस की जब डिलीवरी के बाद सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अपने नॉर्मल पोजीशन में बैक हो जाते हैं, तो उस पीरियड के कंप्लीट होने के बाद ही हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. इफ़ रिमेन फॉर लॉन्ग पीरियड इन वेजाइना लीड्स टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. तो अगर ये रिमेन है लॉन्ग पीरियड तक वेजाइना में, सो ये कंडीशन कॉज कर सकता है, दैट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. सो दिस इज ऑल अबाउट डायफ्राम. Vaginal sponge. The sponge is soaked in vinegar, olive oil traditionally, less effective than diaphragm. Example today. So जो vaginal sponge जो है it is a traditional method and it is less effective than diaphragm. Now physical barrier methods, they are classified into three: condoms, diaphragm and vaginal sponge. Condoms is the most widely used method by the males across the world, and in India it is derived from nirod, which is a Sanskrit word meaning प्रिवेंशन. इसके एडवांटेजेस हैं इजी टू यूज, सेफ, लाइट वेट, नो साइड इफेक्ट्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज एंड प्रेगनेंसी. डिसएडवांटेजेस आर मे स्लिप ऑफ और टीयर ऑफ एंड इंटरफेयर विद सेक्शुअल सेंसेशन. Diaphragm, these are vaginal barriers also known as Dutch cap. And advantages, total absence of risk, और disadvantages है कि इसमें फिजिशियन की रिक्वायरमेंट होती है इसके प्रोसीजर के लिए. डिलीवरी के बाद हम इसे तभी यूज कर सकते हैं जब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस कंप्लीट हो गया हो, एंड अगर ये लॉन्ग पीरियड तक वेजाइना में रिमेन कर जाए तो इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. Vaginal sponge, which is a traditional method. Example today. Next, chemical barrier methods. So it is divided into four types: foams, second cream jellies, pastes, third suppositories and fourth soluble sea films. So foams जो हैं उसमें दो आते हैं, foam tablets and foam aerosols. Second, creams, jellies, paste squeezed from tube. Third, suppositories और soluble sea films जो हैं वो manually inserted किया जाता है. So this is the chemical barrier methods जो prevent करते हैं live meeting of sperm को from the ovum. This is all about barrier methods, जिसके दो मेन टाइप हमने पढ़े, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर मेथड्स. सो ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में ही एग्जाम में पूछा जाता है. रिमेनिंग मेथड्स वी विल स्टडी इन द फर्दर लेक्चर्स वन बाय वन इन डिटेल. दिस इज ऑल अबाउट टुडे, जिसमें हमने फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ी, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, कंसेप्टिव मेथड्स का इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन और उसको बैरियर मेथड्स को डिटेल में पढ़ा. फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू ऑल. बाय बाय. सी यू टुमारो.